অসম চৰকাৰৰ अतिरिक्त मुख्य सचिव बर ठाकुर डांगरिया, बोरझार एयर स्टेशन चीफ एयर कमोडोर अतुल सागर डांगरिया, NDRF और कमांडेंट हरिंदर सिंह डांगरिया, यहाँ उपस्थित अखम घर का और सचिव निदेशक मोर धर्मपत्नी श्रीमती राजेश्वरी यादव डांगरियानी, यहाँ उपस्थित गणमान्य अतिथि सकल और आमार मोर मोर लड़ा छोवाली सकल जिबिलाके আজি प्राइज इते रिसीव কৰিবলৈ আহিছে। আজি এই आबेली बेलात जो तमी लसित घाटत आसो मोर मनत तेतियार कथा परिसे जेतिया मैं प्रथमबार अखमर माटित आहिसो। आजिर बहुत बहुत आगर कथा है तो इट इज अ मैटर ऑफ अर्ली 1980s। तेतिया बोंगाई गाँवते ट्रेन बदली करबो लागे, मीटर गेजर पर ब्रॉड गेज ट्रेन बदली है न्यू बोंगाई गाँव। तेतिया जेतिया सरायघाट दलंग मैं ट्रेनत पार करिसो मोर मनत आश्चर्यचकित হৈছোঁ যে ইমান ডাঙৰ নৈ মই তো আগতে ইমান পানী নৈত হৈছে এনেকুৱা দেখা নাই। তাৰপিছত মোৰ পোষ্টিং হৈছিল যোৰহাটত যেতিয়া যাওঁ আৰু তেতিয়া বানপানীৰ সময় আছিল কাৰণে মই আগষ্ট মাহতে চাকৰি যোগদান কৰোঁ ইয়াতে এছিষ্টেণ্ট কমিশনাৰ হিচাপে। আৰু যেতিয়া মই বানপানী ৰিলিফৰ কাৰণে যাওঁ তেতিয়া মাজুলীৰ ফালে মোক যাবলৈ কোৱা হৈছে যোৰহাটৰ পৰা। তেতিয়া মাজুলী जोरहाट जिलार भीतरत एखन सर्कल बुली आसिल। तो মাজুলী जाऊते मैं देखिছোঁ যে ইমান अथाह पानी 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 और पानी और एको নাই। তেতিয়া मोर मनत भय হৈছে अलग माने যে এই ইমান ডাঙৰ নৈ কেনেকে মানুহ ইয়াতে থাকে, কেনেকে ইয়াতে जीवन पालन करा হয়। পিছতে যেতিয়া মই আমি जलशक्ति मंत्रालयत आही ब्रह्मपुत्र आमंत्रण उत्सव ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान ए बছৰ आरम्भणीत करा হৈছে जनवरी 21। তেতিয়া মোৰ মনত পৰিছে যে actually we have to learn to live with the river. We need not fear the river. We actually know that water is our life. Without water we can't survive. So we have to really learn to live with our rivers, our water bodies, and know how to respect them, how to cultivate them, and how to look after them. And in that lies our well-being and the well-being of our development process, farming process, and inland water transport. Now this inland water transport is so very important to the state of Assam, because whatever thing I can transport from to Guwahati from say Kolkata port or Haldia port, if I do it by the river transport, then I incur only 1/3 or 1/4 of the cost to what I do if I transport it by surface means of railways or roadways. So therefore, development of inland water transport in this great river can really spur the economy of this region and bring down the prices of commodities that we find that prices are high here because they are coming through the trucks, and we know that the geography is such that we have to travel first up and then again come down. So we are traveling not directly, we are traveling in a roundabout manner. This program under Azadi Ka Amrit Mahotsav has been the vision of Honorable Prime Minister, and Ministry of Jal Shakti has been made the nodal agency for this program. And we are happy to have you here this afternoon to celebrate this Utsav. It is celebration of the river. Celebration is much wider than simple veneration. We are celebrating the river, that includes loving the river, taking care of the river, and also veneration of the river. तो आज के इस
समारोह में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि जो संदेश हम आपको इस समारोह के जरिए देना चाहते हैं वो संदेश आप तक पहुँचेगा। नदी को अपनी माँ मानने का, नदी को अपना पिता मानने का। ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जिसको बाबा ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, पिता ब्रह्मपुत्र, क्योंकि इतनी बड़ी है, इसका आकार इतना बड़ा है और कभी कभी ये गुस्सा भी इनको काफ़ी आता है। तो जब गुस्सा आता है तो ऐसे पिताजी गुस्सा होते हैं घर में, वैसे ही उनका गुस्सा होता है। तो इसलिए बाबा ब्रह्मपुत्र, तो आज बाबा ब्रह्मपुत्र को हम लोग प्रणाम करते हैं यहाँ, और हम आशा करते हैं कि जो बाबा ब्रह्मपुत्र के तट पर जिस संस्कृति का विकास हुआ उसकी एक झलक हमें आज यहाँ देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ उन बच्चों को हम यहाँ पुरस्कृत करेंगे जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में इसी थीम के ऊपर पेंटिंग कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन, डिबेटिंग कंपटीशन इत्यादि में भाग लिया है, बढ़ चढ़ के भाग लिया है मैं कहूँगा। और उनको आज यहाँ पे पुरस्कार उस संबंध में दिए जाएंगे। नदी के उत्सव के बारे में उन्होंने इस प्रकार की पेंटिंग की है, किस प्रकार के लेख लिखे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी इस प्रकार के हम युवाओं के बीच में प्रतियोगिताएं आयोजित करते रहेंगे, खेलकूद आयोजित करते रहेंगे, जिससे कि जो कार्य हम ब्रह्मपुत्र के लिए कर रहे हैं उसका मैं आपकी तरफ थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ब्रह्मपुत्र बोर्ड भारतीय संसद द्वारा पारित 1980 में एक कानून के आधार पर स्थापित किया गया, और उस समय इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर पूर्वांचल में बड़े बड़े डैम प्रोजेक्ट या इस प्रकार की प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह बनाना था। आरंभ में से लेके अभी तक हम वही काम करते आ रहे हैं, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों में हमने निश्चय किया कि हम जनता के मध्य भी अपनी फिलॉसफी को, जो अब तक ब्रह्मपुत्र के बारे में काम किया गया है, उसको भी पहुंचाएंगे और कुछ नई दिशा में भी काम करेंगे। तो इस नई दिशा में काम करने के लिए हम लोगों ने IIT गुवाहाटी, NIT सिलचर जैसी संस्थाओं के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, और ब्रह्मपुत्र बोर्ड के कार्यकलापों को एक वैज्ञानिक रिसर्च की ओर मोड़ने की कोशिश की है, जिससे कि हम एक वैज्ञानिक तरीके से इस नदी के विकास और इसके रखरखाव के बारे में उपाय कर सकें। और इसमें दो मुख्य प्रोजेक्ट जो नए शुरू किए गए हैं वो एक बायो इंजीनियरिंग मेजर्स ऑन फ्लड मैनेजमेंट, कि बाढ़ नियंत्रण या बाढ़ के संभालने के लिए किस प्रकार हम अपनी ही धरती पर होने वाली वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, नारियल के से उत्पन्न होने वाली जो नारियल की जड़ें हैं, जो नारियल की जटाएं होती हैं उनको, और किस प्रकार ऐसे साधारण साधनों को हम कुछ इंजीनियरिंग चीज़ों के साथ मिक्स करके एक सस्ता और एक कारगर लंबा उपाय बना सकते हैं, जिससे कि ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारों को हम भाल से अच्छी तरीके से उनका रख रखाव कर सकें और कम खर्च में रख रखाव हो सके। इसी प्रकार एक दूसरा प्रोजेक्ट जो हाथ में लिया गया है वो ये है कि यहाँ पर रहने वाली जो जनजातियाँ हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, वो सदियों से कुछ वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करते आ रहे हैं। अब तक हम उनको उतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब हमें लगा है कि उन वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में अपने आप में एक मेरिट है और एक सदियों की परंपरा का ज्ञान है। तो हम कैसे उन वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को थोड़ा सा साइंटिफिक इनपुट डाल के और अच्छा करके और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं लोगों के द्वारा उसका उपयोग किया जाए, उन्हीं के द्वारा उसका निर्माण किया जाए और उन्हीं के द्वारा उसका रख रखाव किया जाए। तो इसमें लोगों की सहभागिता बढ़ेगी और जो उनकी पुरानी, जो उनकी नॉलेज है, जो उनका ज्ञान है, उसका उपयोग होगा और कम खर्च में हम वही काम कर पाएंगे जो कि हम अभी पुरानी पद्धति को अपनाते हुए थोड़ा ज़्यादा खर्च में करते हैं। तो ये दो प्रोजेक्ट इस हाल में लिए गए हैं पिछले 3 सालों में। और ब्रह्मपुत्र बोर्ड के बारे में पहले ये भी था कि ये सिमटा हुआ है सिर्फ गुवाहाटी तक, तो इसके पूरे, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जो अपना बड़ा रूप लेती है उसमें 64 नदियाँ आके मिलती हैं और पूरे उत्तर पूर्व की हैं वो 64 नदियाँ।
तो उन 64 नदियों को जब तक हम देखभाल नहीं करेंगे तब तक हम ब्रह्मपुत्रा की देखभाल नहीं कर सकते। तो उन 64 नदियों की देखभाल करने के लिए उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में ब्रह्मपुत्रा बोर्ड का एक एक रीजनल ऑफिस की स्थापना की गई है। 9 नए रीजनल ऑफिस बनाए गए हैं, जिससे कि वो उन प्रदेशों की राज्य सरकारों के साथ पूरा संपर्क रखा जाए और ब्रह्मपुत्रा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो मिलने वाली नदियां हैं, उनके पानी के ऊपर भी वैसे ही काम किया जाए, जिससे कि उसका रिजल्ट हमें फिर ब्रह्मपुत्रा की मुख्य धारा में देखने को मिले। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे ये प्रयास आगे सफल होंगे और ये आसाम की भूमि के लिए, जो कि मेरी कर्म भूमि रही है बहुत वर्षों तक, ये एक योगदान होगा और इससे हम सबको एक संतुष्टि का एहसास होगा ब्रह्मपुत्रा बोर्ड में कि हमने आसाम की जनता, उत्तर पूर्व की जनता के लिए कुछ नया काम किया। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी का आज यहाँ स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इस समारोह को, इस सेलिब्रेशन को एंजॉय करेंगे, आनंदित होंगे। और आप सभी को मेरी ओर से आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं, आपके परिवार को, आप लोगों को, सभी को धन्यवाद।